Welcome to the first chapter of 10th Maharashtra State Board Political Science. First chapter is working of constitution. So in this chapter we will study how our constitution is working and what are the different features of our constitution, what are the different laws that are made that are given in our constitution, how constitution ensures social justice social justice, how we are having democracy in our country, or what is the role of judiciary. So we will study all these things. So let us see what we have studied earlier. So in the textbooks of political science till now, we have helped us to take an overview of local government. So local government means पंचायत, municipalities, that is local government. Local level पे जो government होता है, पंचायत, municipality, that is local government. The values and philosophy of Indian constitution. So we have studied the values of our constitution. Like constitution believes in equality. All people are treated equally in our country. There is freedom given to the citizens. Citizens can freely move in the country. If people from Rajasthan can come and live in Mumbai. People from Mumbai can go and live in Delhi. So we are having freedom. We are having freedom of speech. We can speak against the government. So these are the various values that are given to the constitution. We are having secularism, as all the religions are treated equally in our country. So these are the different values in our constitution. So we have last year we have studied about international relations. So what are India's international relations? We have studied about United Nations. We have studied about different organs of United Nations. So these things we have studied. So Indian Constitution has declared its objective to establish secular democratic republic. So if you see the first few pages of your textbook, there is a preamble. So in preamble also it is given that India is a secular or democratic republic. सेकुलर मीन्स गवर्नमेंट इज ट्रीटिंग ऑल द रिलीजन्स एज इक्वल. गवर्नमेंट के सामने सभी रिलीजन एक जैसे होते हैं. गवर्नमेंट किसी रिलीजन को प्रीफर नहीं करता है, सभी को इक्वल रेस्पेक्ट देता है. सो दैट इज सेकुलर. देन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी. देयर इज डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री. ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल. देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द पीपल एंड ऑल द सिटीजन्स आर हैविंग इक्वल राइट्स. सो दैट इज डेमोक्रेसी. एंड रिपब्लिक. रिपब्लिक मतलब जिस कंट्री के हेड ये इलेक्टेड होते हैं, दैट कंट्री इज कॉल्ड एज रिपब्लिक. सो इन केस ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द इंडियन कंट्री इज प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है. तो जिस कंट्री का प्रेसिडेंट या हेड इलेक्टेड होता है वो कंट्री को रिपब्लिक बोलते हैं. इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की हेड होते हैं क्वीन. ब्रिटेन की हेड है क्वीन. क्वीन इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. क्वीन हेरिडेटरी पोजिशन है. क्वीन के बाद उनके बेटे या बेटी किंग या क्वीन बनेगी. सो दैट इज नॉट अ इलेक्टेड पोजीशन. सो ब्रिटेन कैनॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी और ब्रिटेन कैनॉट बी कॉल्ड अ रिपब्लिक. ब्रिटेन इज अ डेमोक्रेसी. ब्रिटेन में भी प्राइम मिनिस्टर है, वहां भी इलेक्शंस होते हैं, बट रिपब्लिक नहीं है क्योंकि वहां के जो हेड है दैट इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. सो इंडिया इज डेमोक्रेटिक, सेकुलर एंड रिपब्लिक. Also, it has made extremely important provisions to ensure that citizens get justice and their freedom is protected. So we have given fundamental rights to the citizen, like right to equality. Citizens are getting justice. सभी को न्याय मिलता है और सभी का फ्रीडम हम प्रोटेक्ट करते हैं. अगर किसी ने क्राइम किया तो ही उसे हम जेल में भेजते. किसी को कुछ किया नहीं है तो हम जेल में नहीं भेज देते, या कोई उसका फ्रीडम पे रोक नहीं लगा लेते. So all the steps are taken to protect the freedom of the citizen. The Indian Constitution is seen as the means through which progressive development society based on social justice. Social justice means justice in the society. Everybody in the society should get equal share or equal share in the power. जो भी लोग सोसाइटी में रहते हैं सभी को हम इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए. दैट इज सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी विल बी एस्टैब्लिश. तो इक्वालिटी शुड बी एस्टैब्लिश इन द कंट्री. ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. सो दैट सिटीजन्स आर गेटिंग दिस. सो वी आर मेकिंग अ प्रोग्रेसिव डेवलप्ड सोसाइटी. सभी लोगों को अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे तो ही हमारा सोसाइटी प्रोग्रेसिव होगा, डेवलप होगा. सो ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल पावर दिया है, इक्वल राइट्स दिया है, सो दैट आवर कंट्री और आवर सोसाइटी इज बिकमिंग प्रोग्रेसिव. सी कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. सो 26 जनवरी 1950 जो हमारा रिपब्लिक डे है, उस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ, फोर्स में हुआ, अडॉप्ट कर दिया हमने, इनैक्ट किया. एंड सिंस देन द गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग इन अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो फ्रॉम दैट डे गवर्नमेंट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. सो गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, रिपब्लिक है और डेमोक्रेटिक है. तो गवर्नमेंट को भी उस हिसाब से काम करना पड़ता है. जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है
वो सेकुलर पॉलिसीज होना चाहिए, वो डेमोक्रेटिक पॉलिसी होना चाहिए, या फिर वो रिपब्लिक कंट्री के जो पॉलिसीज होते हैं वैसे होना चाहिए. सो गवर्नमेंट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. In this chapter, we will take a brief overview of wide-ranging nature of Indian democracy, important changes that have taken place in the political process, and steps that have been taken to establish social justice. So, what are the different steps that the government has taken to ensure justice to everybody? Government ने क्या कदम उठाए कि सभी को equal power मिले, सभी को न्याय मिले सोसाइटी में. ऐसे नहीं कि कोई ग्रुप को हम लोग कुछ पावर नहीं दे रहे, एक ग्रुप को ज़्यादा पावर मिल रहा है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. एवरीबडी शुड गेट इक्वल पावर, एवरीबडी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी. ये सोसाइटी में सभी को मिलना चाहिए. एंड देर इज वेरियस वाइड रेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. सो देर आर डिफरेंट थिंग्स दैट वी आर हैविंग, लाइक वी आर हैविंग लेजिस्लेचर, वी आर हैविंग जुडिशरी, वी आर हैविंग एग्जीक्यूटिव, और अलग अलग लॉज है हमारे कंट्री में जो वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. देन वी विल टेक व्हाट आर द चेंजेस दैट हैव मेड इन द इंडियन कंट्री. सो इन दिस चैप्टर वी विल रिव्यू primarily focus on three areas. First is democracy, second is social justice, and third is judicial system. So we will study this chapter in three parts. In first part we will study about democracy, second part we will study about social justice, and third part we will study about judicial system. So let us begin with the democracy first. See, political maturity मतलब क्या होता है? लोग मैच्योर होना चाहिए. लोग मैच्योर कभी हो गए जब भी लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता होगा और लोग गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेंगे. गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेंगे तो गवर्नमेंट भी लोगों को आंसरेबल है, गवर्नमेंट भी लोगों को आंसर देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट भी अच्छा काम करेगा. सी, जब भी कंट्री में इंडिपेंडेंस होता है तो सभी को इक्वल राइट्स नहीं होता है. जब भी इंडिपेंडेंस मिलता है तो सभी को इक्वल राइट्स नहीं मिलता है, या सभी को इक्वल पावर में आने का इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है. जैसे जैसे कंट्री एडवांस करते जाता है वैसा सोसाइटी भी मैच्योर होता है. सोसाइटी मैच्योर होने के बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट के लॉज भी ऐसे बनते हैं कि सभी को हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं. So let us see what is the political maturity. Democracy does not merely imply on representative structure. So we are having representative democracy. हम डायरेक्टली रूल नहीं करते, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को गवर्नमेंट बनाने के लिए भेजते हैं या उनको मिनिस्टर्स बनाते हैं. सो वी आर वर्किंग विद आवर रिप्रेजेंटेटिव्स. रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे काम करते हैं वहां जाके. सो ओनली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नॉट इनफ. ये जो लास्ट लेवल तक, लास्ट आदमी तक गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स है वो पहुंचना चाहिए. लास्ट आदमी को भी पावर होना चाहिए अपने बारे में सोचने के लिए. सो दैट इज पॉलिटिकल मैच्योरिटी. द एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज टू इंटीग्रेट प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस. सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव जब भी जाते हैं ये अपने लिए काम करते हैं और ये हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं. सो वी आर हैविंग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. वंस दिस इज डन, democracy becomes an integral part of the political life of the society. See, democracy is the integral part. ये हमारे जिंदगी से हट नहीं सकता है. It is basic part of our system. See, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लिए काम करते हैं. हमारे कंट्री को अगर चलना है तो हमें रिप्रेजेंटेटिव चूज करना पड़ेगा, उसके लिए इलेक्शंस करना पड़ेगा. इलेक्शंस होगा तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और वो हमारे लिए काम करेंगे, मिनिस्टर्स बनेंगे या प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे और हमारे लिए काम करेंगे. अगर इलेक्शंस नहीं होगा तो ये ऐसा गवर्नमेंट चलेगा नहीं. सो इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. अकॉर्डिंगली इंडियन पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट. सो इंडिया के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं. पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. सो वी कैन नॉट गो एंड डायरेक्टली रूल इन अवर कंट्री. हमारे सब लोग, इंडिया के 125 करोड़ प्लस लोग एक जगह जाके हमारे लिए पॉलिसीज नहीं बना सकते. इसलिए हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा, सो दैट रिप्रेजेंटेटिव्स विल गो एंड दे विल वर्क फॉर अस, दे विल वर्क ऑन बिहाफ ऑफ अस. सो पीपल आर गेटिंग डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट. जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे आपकी क्लास में जो मॉनिटर होता है या क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करता है. सो ही इज रिप्रेजेंटिंग अस. वो हमारे बिहाफ पे वहां जाके मॉनिटर बनाए या क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाए. Same is with the member of parliament or member of legislative assemblies. So state assemblies and local government. Local government में जो पंचायत में सरपंच होते हैं या म्यूनसिपालिटीज में जो नगर सेवक होते हैं या फिर जो कॉर्पोरेटर होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग सम एरिया. हमारे गांव का जो सरपंच है ये सभी गांव के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, सभी गांव के लोगों के लिए पॉलिसीज बनाता है. सेम इज विद लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स विधानसभा. सो महाराष्ट्र में विधानसभा भी है, विधान परिषद है. बोथ ऑफ देम आर देयर. So that is state legislature. Holding free and fair elections at regular interval is important indicator of India's successful democracy.
So we are having fair elections and free elections. Free election means people are having freedom to choose anybody. हमने people को choice दिया है, they can choose any leader according to their choice. So वहाँ freedom है लोगों को. और fair election means कोई घोटाला नहीं होना चाहिए, कोई मैल प्रैक्टिसेस नहीं होना चाहिए इलेक्शन में, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए जीतने का. सो दैट इज फेयर इलेक्शंस. सो वी आर हैविंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. अमेरिका में भी कुछ टाइम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते, बट इन अवर कंट्री वी आर हैविंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. So at regular intervals, after 5 years, we are having free and fair elections. So after regular intervals is an important indicator of India's successful democracy. हमने हर 5 साल बाद जब इलेक्शंस लेते हैं तो लोग हमें हमारे लीडर्स के लिए वोट करते हैं. सो ये प्रूफ है कि इंडिया में जब भी इलेक्शंस होता है, लोकसभा का इलेक्शंस होता है, तो वर्ल्ड में इतने लोग नहीं है जो एक कंट्री में इतने लोग वोटर है जितने इंडिया में है. इंडिया इज हैविंग वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड. So it is indication that we are having democratic government or we are having successful democracy. The increasing participation of people in political process and political competition shows that India's democracy has become successful to great extent. So हमारे लोग ज़्यादा participate कर रहे हैं. People are asking questions to the ministers or people are asking questions to the leaders. जितना लोगों का participation बढ़ेगा उतना democracy ज़्यादा develop होते जाएगा. So as more and more people are participating, there will be competition between political parties. सो अगर लोग ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा गवर्नमेंट के काम में पार्ट लेंगे, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज रूल में आना चाहता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट बनना चाहता है, दैट पॉलिटिकल पार्टीज विल ऑल्सो स्टार्ट कंपीटिंग. दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन होगा. जो काम पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम करेगा उसे हम चूज करेंगे. सो ये भी अच्छी बात है. पॉलिटिकल पार्टीज में अगर कॉम्पिटिशन होगा, सो दैट इज गुड फॉर द कंट्री. So next we will see right to vote. See, in India we are having right to vote. People, adult citizen above 18 years of age is getting right to vote. So even if he is male or female or he is belonging to any caste, any religion, he is getting right to vote. Or he is rich or poor, he is getting right to vote. So India में 18 years के above अगर हम होंगे तो हमें right to vote मिलेगा, वोटिंग का right मिलेगा. हम कौन से भी रिलीजन से हो, कौन से भी लैंग्वेज बोलते हो या कहीं से भी आते हो, we are getting voting rights. Earlier, that the age was 21 years. After Rajiv Gandhi became Prime Minister of India, he changed that to 18 years. So 18 years हो गया. पहले 21 years था, अभी 18 years है. The Indian Constitution has made the provision for right to vote for adults. So there is a provision in the Constitution. Constitution में ऐसे लिखा है या Constitution में ऐसे बताया है कि adult citizen should have right to vote. Adult means more than 18 years of age. In the pre-independence period, several provisions existed which restricted the right to vote. So pre-independence means before independence. Independence के पहले ऐसे बहुत सारे provisions थे, बहुत सारे laws थे जो right to vote नहीं दे रहे थे. But after independence, all such provisions were cancelled. After independence, an Indian constitution granted adult suffrage. Adult suffrage means people or adult citizen above age of 18 or some specific age. Whenever they are becoming adults, they are getting voting right. That is adult suffrage, or we are calling it as universal adult franchise or universal adult suffrage. By giving the right to vote equally to both men and women above 21 years of age. ये 21 years of age पहले था जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में. The voting age was later reduced from 21 to 18, which gave opportunity to political participation to younger generation in India. So जब भी 18 years कर दिया तो younger generation भी अभी political participation कर रहा है, कि पॉलिटिक्स में पार्ट ले रहा है या पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी हासिल कर रहा है. So they are voting for the government. So that is good. Such provision has made the India's largest democracy in the world. So because of this, India is the largest democracy. Largest democracy means इंडिया में इतने लोग हैं, इतना पॉपुलेशन है जो वोटिंग करता है, वैसे वर्ल्ड में कहीं नहीं है. सो इट इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर्ड टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन. तो इंडिया में सबसे ज्यादा वोटर्स है वर्ल्ड में, कोई भी कंट्री से कंपेयर करें तो. दिस चेंज हैज नॉट ओनली क्वांटिटेटिव बट ऑल्सो क्वालिटेटिव. ये क्वांटिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हम कि इतने ज्यादा वोटर्स है, बट दैट इज क्वालिटेटिव. क्वालिटी भी है वोटर्स का. Voters are thinking thinking about the government. If the government is not working properly, voters are not voting them. They are removing them from the office. तो दूसरा पार्टी को वोट करते हैं और उनका गवर्नमेंट बनाते हैं. Like we have seen in 2014 when नरेंद्र मोदी became the prime minister. So कांग्रेस का जो रूल था उसको हटा के नरेंद्र मोदी का रूल एस्टेब्लिश किया, बीजेपी का रूल एस्टेब्लिश किया.
2004 में जब भी बीजेपी का गवर्नमेंट था, लोगों को बीजेपी का गवर्नमेंट पसंद नहीं आया, तो लोगों ने बीजेपी को हरा के कांग्रेस का गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया था 2004 में। मनमोहन सिंह बिकम प्राइम मिनिस्टर। तो ये ऐसे चलते रहता है, अगर लोगों को काम पसंद नहीं है गवर्नमेंट का, so people are not voting for that political party, people are voting for different political party and they are making them, they are establishing government। so ऐसे हर साल हर बार चलता है। the parties represent various expectations of people and compete in political sphere। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है लोगों के एक्सपेक्टेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पॉलिटिकल पार्टी से एक्सपेक्टेशन होते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए अच्छा काम करेगा, तो जब भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आता है तो ये काम करने का कोशिश करता है। सो दे आर रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल। So there are various political parties that are emerging. We are having many political parties. We will study about political parties in the third chapter. Next is decentralization of power. Decentralization मतलब पावर हम लास्ट लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। एक ही पर्सन के हाथ में या एक ही ग्रुप के हाथ में पावर कॉन्सेंट्रेट नहीं है, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द लास्ट लेवल। इनिशियली क्या था हमारे कंट्री में, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट थे, एक तो नेशनल गवर्नमेंट था या यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, एक गवर्नमेंट था, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट्स थे। तो स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में ही पावर था। अभी 1992 के बाद क्या हुआ कि हमने लोकल लेवल के गवर्नमेंट को भी पावर दे दिया, पंचायत को, म्युनिसिपैलिटीज को भी पावर दे दिया। सो वी हैव डिसेंट्रलाइज द पावर, वी हैव गिवन द पावर एट द लास्ट लेवल। सो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, decentralization of democracy। Decentralization of democracy is central to democratic government। Decentralization controls the misuse of power and also creates opportunity for political participation for the common people। So there is misuse of power। अगर एक पर्सन के हाथ में पावर कॉन्सेंट्रेट है, डिक्टेटरशिप में होता है या फिर मोनार्क के हाथ में होता है, जब भी एक ही पर्सन के हाथ में पावर कॉन्सेंट्रेट होता है तो उसमें पावर का मिसयूज हो सकता है। बट एज द पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ मेनी पीपल, जैसे लोकसभा में जो हमारे या प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, हमारे सरपंच है या फिर मेयर है सिटी के, उनके हाथ में भी पावर है। सो देर आर मेनी पीपल हु आर होल्डिंग पावर। सो देर आर लेस चांसेस दैट पावर विल बी मिसयूज्ड। अगर एक ही आदमी के हाथ में पावर है तो देर आर मोर चांसेस दैट पावर विल बी मिसयूज्ड। सो एंड देर इज वन मोर थिंग, देर इज अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मतलब हम कॉमन सिटीजन्स भी सरपंच या कॉर्पोरेटर और मिनिस्टर्स बन सकते हैं अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पावर में आने का चांस मिलेगा। सो बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू लास्ट लेवल। सो मेनी पीपल आर गेटिंग चांस टू बिकम सरपंच और मेनी पीपल आर गेटिंग चांस टू बिकम मिनिस्टर्स और कॉर्पोरेटर्स। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड्स द प्रोविजन फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट 4, 1950s में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी हमने प्रोविजन किया था कि हमारे कंट्री में आगे जाके पंचायत राज एस्टेब्लिश होगा, पंचायत का गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होगा, म्युनिसिपैलिटीज एस्टेब्लिश होंगे। लेकिन 1950 में ये अप्लाई नहीं कर दिया था हमने। इन 1992 दैट वाज अप्लाइड। सो वी विल सी हाउ दैट वाज अप्लाइड। वन सच इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज रिगार्डिंग एम्पावरिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मेकिंग जेन्युइन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अ रियलिटी। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होता है, उसे एम्पावर करना। एम्पावर कैसे करेंगे हम? उसे जब भी पावर देंगे। सो दे आर गेटिंग मोर एंड मोर पावर, दे कैन टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर विलेज, रिगार्डिंग देयर टाउन। सो वी हैव एम्पावर्ड देम। सो जितना ज्यादा हम एम्पावर करेंगे तो देयर विल बी जेन्युइन डेमोक्रेसी और जेन्युइन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन रियलिटी। डेमोक्रेसी मीन्स पीपल आर हैविंग शेयर इन द पावर। So as more and more people are getting chance to become representatives, then many people will become representatives and there will be genuine democratic government. After independence, several attempts were made towards democratic decentralization. So independence के बाद हमने democratic decentralization कर दिया। Decentralization मतलब पावर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया, लास्ट लेवल तक पावर मिला, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, इनको पावर मिला। One such important attempt was 73rd and 74th amendment. 73rd and 74th amendment means, amendment का meaning होता है change। Whenever there are changes made to the constitution, that is called as amendment। So जब भी constitution में 73rd और 74th बार जब भी change किया, तो उस changes में क्या था कि पंचायत को हमने compulsory बनाया। उस change के बाद 1992 में ये changes हुआ था। According to the changes, it is compulsory for the government to establish पंचायत and municipalities
एंड जिला परिषद और ब्लॉक पंचायत, ये एस्टेब्लिश करना पड़ा, ये कंपलसरी कर दिया। 1950s में जब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे तभी कंपलसरी नहीं था। आफ्टर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट किसको होता है? कॉन्स्टिट्यूशन को होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं, दैट इज अमेंडमेंट। सो पंचायत गवर्नमेंट वॉज मेड कंपलसरी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वेर ऑल्सो इंक्रीज देयर पावर, सो उनको पावर भी मिला। So let us see what are the changes or what are the reason for the changes. What are the changes that were made in the panchayat? Some seats are kept reserved for women to increase their participation in political process. So in panchayat and in municipalities in India 33% seats are reserved. 33% seats, अगर 100 seats है म्यूनसिपालिटी में, उसमें से 33 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होगा। सो वुमेन को गारंटी मिलेगा, पावर में आने का चांस मिलेगा। अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो वुमेन को चांस नहीं मिलता आने का। So 33% seats are reserved for women. In India 33% seats are reserved, but in Maharashtra 50% seats are reserved for women. So because of this, participation of women in political process has increased. Some seats are kept reserved for weaker sections of society. So weaker sections like scheduled caste, scheduled tribe, other backward class, so that they can get share in power. So उनको भी power में आने का chance मिलेगा. So they are getting share in political power. स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज एस्टैब्लिश्ड। सी नेशनल लेवल पे जब भी इलेक्शन होता है, लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन होता है, दैट इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय नेशनल इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सेकंड चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट इलेक्शन कमीशन। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इलेक्शंस कंडक्ट कराता है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है उस पर। लेकिन स्टेट में जब भी पंचायत का, म्यूनसिपालिटीज का इलेक्शन होगा तो उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया हमने। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज कंडक्टिंग इलेक्शंस, इलेक्शन कंडक्ट कराता है। किसका इलेक्शन कंडक्ट कराता है? पंचायत और म्यूनसिपालिटीज का। 11th एंड 12th शेड्यूल वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल मतलब होता है लिस्ट, ये लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। 11th एंड 12th शेड्यूल, पहले 80 शेड्यूल था कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम बना था, उसके बाद अभी 12 शेड्यूल्स हो गए। सो 11th एंड 12th शेड्यूल वेर एडेड। उस शेड्यूल के अंदर पंचायत के कुछ पावर्स के बारे में लिखा है, म्यूनसिपालिटीज के पावर के बारे में लिखा है। तो ये गारंटी मिला कि पंचायत को कुछ पावर मिलेंगे। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड करते हैं, चेंजेस करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज है, दैट लॉज आर गिविंग गारंटी टू द पीपल। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि एवरीबडी इज इक्वल इन इंडिया। सो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, सो दैट इज अ गारंटी दैट ऑल द पीपल विल बी ट्रीटेड इक्वली इन अवर कंट्री। सो गारंटी इज इंपॉर्टेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग अस गारंटी। नेक्स्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन और आरटीआई, दैट लॉ वॉज मेड इन 2005। सी राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स सिटीजन्स को राइट है गवर्नमेंट के काम के बारे में जानने का राइट है। सो पीपल आर हैविंग राइट टू आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हम चूज करके भेजते हैं। सो गवर्नमेंट हमें आंसरेबल है। हम गवर्नमेंट को चूज करते हैं। सो वी आर आंसरेबल, वी आर क्वेश्चनिंग टू गवर्नमेंट। ये क्वेश्चनिंग कैसे करेंगे? हम एक आरटीआई एप्लीकेशन देंगे कि हमें इस काम के बारे में जानकारी चाहिए। सो गवर्नमेंट विल गिव दैट इंफॉर्मेशन। सी 100% इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। अगर कल हमने पूछा कि इंडिया के न्यूक्लियर बॉम्ब्स किधर है या इंडिया के मिलिट्री के पास कौन से वेपन्स है, तो दैट इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी शेयर टू द पब्लिक। सो दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। बट बाकी इंफॉर्मेशन की, ये रेलवे बनाने के लिए कितना पैसा लगा और रोड्स बनाने के लिए कितना गवर्नमेंट ने स्पेंड किया, दैट इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पीपल। सो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं आरटीआई लॉ के वजह से। सो बिकॉज ऑफ दिस लॉ गवर्नमेंट के काम के ऊपर हम नजर रख सकते हैं। सो दैट इज गिविंग गुड, दैट इज अ गुड थिंग दैट वी कैन कीप एंड वॉच ऑन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। So government is also answerable to the people. Government is becoming responsive. Government has to answer to our questions. So that is good. Citizens empowerment is the essential conditions in democracy. Citizens इससे empower होंगे, citizens को power मिलेगा कि government के काम के ऊपर नजर रख सकते हैं। So citizens empowerment is the essential conditions of democracy. It is necessary to create opportunity for citizens participation and interaction with the government. So citizens interaction is important. So citizens interact कभी करेंगे जब भी citizens government के काम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. So that is interaction of the people. So increased communication between citizens and government helps in strengthening democracy and building relation of trust between them. तो जब भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या मिनिस्टर्स और लोगों के बीच में जब भी बातचीत होती है तो लोगों को भी गवर्नमेंट के काम के ऊपर भरोसा होता है, ट्रस्ट जनरेट होता है. सो दैट ट्रस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी. अगर गवर्नमेंट को अच्छे से काम करना है, सो ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर लोगों को गवर्नमेंट के काम के ऊपर भरोसा नहीं होगा
तो गवर्नमेंट का काम करने का कुछ यूज नहीं है. So people and government should work properly. Citizens have the right to know about functioning of the government. So citizens are having right to know about the functioning of the government. Functioning of the government means how government is working. The government of India gave the right to information to citizens of India to ensure transparency and accountability. So 2005 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया था इंडिया लेवल पे कि सभी को अपना कुछ भी इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार है गवर्नमेंट से. सो या सूचना का अधिकार हिंदी में बोलते हैं. सो देयर इज दिस एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. ट्रांसपेरेंसी मीन्स गवर्नमेंट के काम के बीच में कोई बीच में पर्दा नहीं लगा है. there is a transparency. We can see what government is doing, so we can ask the government, we can request the government, like how much money you have spent for this road, how much money you will be spending for this railway. So we can ask the government and government has to answer. So there is a transparency in the work of government. And there is accountability. Government is answerable to the people. Accountability मतलब government को हम government का गला पकड़ सकते हैं कि आपने ये इतना पैसा क्यों खर्चा किया, इतना ही पैसा चाहिए था. So we can ask the government, or government is answerable to the people. So that is ensuring transparency and accountability. Which are the hallmarks of good governance? So ये important चीज है good governance का. Good governance means government is not doing any corruption, government is taking good decisions. That is good governance. Right to information has made the government more transparent and has reduced the element of secrecy in the working of the government. पहले right to information के पहले government के काम बहुत secret होता था. अगर किसी ने information मांगा so government बोलता था कि ये information secret है, we cannot reveal that information. But after right to information, many information or most of the information government has to share with the people. So there is no secrecy in the work of the government. Government अभी बोल नहीं सकता कि ये काम secret है, we cannot share with you. That is not the case. After year 2000, the whole approach towards democratic reforms has changed. Democratic reforms means change in the approach of the government, change in the work of the government. जब reforms मतलब change. So there is approach of the democratic reforms has changed. Democratic reforms are considered as right of the citizen. So now we are considering as the democratic reforms are rights of the citizen. That is important for the working of the government. Accordingly, citizens in India have got right to information, right to education, right to food security. This right have strengthened the democracy. So because of this right to education, right to information, democracy of India has strengthened. Democracy और ज़्यादा powerful बन रहा है और ज़्यादा strong बन रहा है. See how right based approach has changed. In decades after independence, progress was made towards more and more democratization of India. However, in this process, citizens were considered as beneficiaries. So हमें पहले क्या लगता था कि गवर्नमेंट माई बाप है, गवर्नमेंट लोगों का भलाई करने का काम कर रहा है. ऐसे एक उपकार की भावना होती है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, लोगों के ऊपर उपकार कर रहा है. So people were thinking that we are beneficiaries. गवर्नमेंट के काम के हम बेनिफिशरीज है, हमें गवर्नमेंट के काम का कुछ भला हो रहा है, फायदा मिल रहा है. लेकिन हमने अभी अप्रोच क्या चेंज कर दिया कि गवर्नमेंट का कुछ भला करने का काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है लोगों के लिए. गवर्नमेंट जॉब इज टू वर्क फॉर द पीपल. सो पीपल आर ट्रीटेड एज सिटीजन्स नाउ. They are not treated as just like slaves that were treated earlier. Now people are treated as citizens in India. This is good thing. See, but there are some things that we cannot give to the citizens. सभी को हम लोग ये नहीं दे सकते. जैसे सभी को हम jobs दे सकते हैं कि आज. That is not the case. We cannot give jobs to everybody. In future we can give, but now we cannot give. And we also cannot give shelter to the people because it is not possible for the government to give money to everybody and give jobs to everybody. In future we can give, but today it is not possible for the government. Many people are unemployed. So because we cannot give everything to the people. पहले राइट टू एजुकेशन भी नहीं दे सकते थे, एजुकेशन भी सभी को नहीं दे सकते थे हम जब इंडिपेंडेंस मिला था. बट नाउ गवर्नमेंट कैन अफोर्ड. गवर्नमेंट के पास अभी पैसा है कि स्कूल स्टार्ट कर सकता है, फ्री एजुकेशन दे सकता है, फ्री फूड प्रोवाइड कर सकता है. सो दैट इज गुड. बट लार्जर जो भी इश्यूज है जैसे घर देना सभी को, दैट इज नॉट पॉसिबल येट. So in the second part, we will study about social justice and equality. So in the first part, we must have understood about right to information, right to vote, political maturity. So we have discussed how government should give equal respect to all the citizens in the country. So we have given right to information so that citizens can keep check on the government's work, and government is answerable to the people. Government is accountable to the people.
We have also seen all the adult citizens in our country are getting right to vote. People above 18 years of age are getting right to vote. So in the second part, we will talk about social justice and equality. तो सोशल जस्टिस का मीनिंग होता है सोसाइटी में सभी लोग एक जैसे हैं, सभी को हम सोसाइटी में सभी लोग एक जैसे हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ट्रीटमेंट है कि देयर इज राइट टू इक्वालिटी इन आवर सोसाइटी. बट देयर आर सम पीपल हु आर बैकवर्ड, देयर आर सम पीपल हु आर पुअर, और देयर आर सम पीपल हु आर ट्रीटेड inferior by some caste, inferior caste. So we have to give them justice, we have to give them opportunity so that they can also become equal like everybody. So that is social justice. There are some people who are from backward caste, so they are not getting job opportunities, they are not getting educational opportunities, so we are giving them scholarship, we are giving them reservation, so that they will also become part of the society, equal level पे आ सकते हैं. So that is social justice. And there is equality in the society. अगर सभी को हम equal treatment देंगे, सभी को equal opportunity देंगे, so there will be equality in the society. So let us study about social justice and equality. Social justice and equality are the important objectives of our constitution. So these are important objectives of our constitution. The constitution has given guidelines to establish a new society based on these two values. So जो भी हमारा सोसाइटी बनेगा, जो भी हम गवर्नमेंट के पॉलिसीज बनेंगे, वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज को सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को सोच के ही बनाना पड़ेगा. We are following the path laid down by our constitution to achieve this goal. To establish social justice is to remove those social conditions which are responsible for injustice and insist on equality and dignity of all citizens. So, to establish social justice is to remove all those social conditions that are responsible for injustice. See, society में bad practices होते हैं that are not treating everybody as equal. There is caste system in our society. Caste system क्या करता है कि कुछ लोगों को higher position पे लेके रखता है, कुछ लोगों को लोअर पोजीशन पे रखता है. लोअर पोजीशन के जो लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते. तो सोशल जस्टिस क्या होता है कि सोशल जस्टिस में हम इस कास्ट सिस्टम है, गलत चीजें सोसाइटी में, उसे हटा देंगे. वी विल रिमूव देम एंड वी विल एंश्योर दैट एवरीबडी विल गेट जस्टिस इन द सोसाइटी, एवरीबडी विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी. So, the principles of justice and equality aims at ending discrimination in the social status such as superior or inferior on the basis of caste, religion, language, gender. So we are treating some religion as superior religion, some religion as inferior religion. As per gender, male are treated as superior, female are treated as inferior. So ऐसा inferior, superior ऐसा भेदभाव है सोसाइटी में. That should be end. ये एंड कैसे होगा जब भी हम सभी को इक्वल ट्रीट करेंगे. सो इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस शुड बी देयर इन द सोसाइटी. देयर इज डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ. जैसे किसी का बर्थ मुंबई में हुआ, सो दे आर ट्रीटेड एज सुपीरियर. और सपोज सम पीपल आर टेकिंग बर्थ इन ली or higher caste family, lower caste family, so that people are treated as inferior or that people are treated as superior. So this should not be there. We should treat everybody as equal. The opportunity of development and to every individual. So जो भी development की opportunities है, that should be given to all the individuals. We should not differentiate between all the people. We should treat everybody as equal. To establish social justice and equality, efforts are to be made at all levels of society. But the government efforts and policies are more important. So we have to efforts on only government should not take efforts. Everybody should take efforts. गवर्नमेंट अगर सोच रहा है कि कुछ चेंज कराना है, ये चेंज जब कभी होगा जब भी लोग सोचेंगे वैसा गवर्नमेंट जैसा. सो पीपल शुड ऑल्सो टेक एफर्ट्स. बट गवर्नमेंट जॉब इज मोर इंपॉर्टेंट. इफ गवर्नमेंट इज मेकिंग सम लॉ, देन ओनली दैट सोशल इनजस्टिस विल स्टॉप. इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ अनटचेबिलिटी, या पहले जो लोगों को इंफीरियर कास्ट के लोग हैं उनको हम अनटचेबल ट्रीट करते थे, दैट वॉज एंडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया. तो ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाया कि जो भी अनटचेबिलिटी फॉलो करेगा उसे सजा होगा. सो दैट इज एंडेड. बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी दैट इज गॉन. बट स्टिल देर आर सम पीपल हु आर फॉलोइंग दैट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस. सो इफ पीपल आर चेंजिंग along with the government, people are changing, then only the social injustice will end from the society, and there will be social justice in the society or equality in the society. Democracy is in fact a process of accommodating different sections of society. So we are accommodating everybody. सभी को एक साथ हम रखते हैं सोसाइटी में, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, सभी को इक्वल पावर्स देते हैं, एंड सभी को एक साथ हम रखते हैं और एक भाई बहन जैसे रहते हैं. सो वी आर हैविंग फ्रैटर्निटी इन अवर सोसाइटी. फ्रैटर्निटी मीन्स भाईचारा.
Democracy helps in reducing social conflicts. Let us take review of efforts made in India in this direction. So we have ended social conflicts in the society. सोसाइटी में अगर दो ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है, झगड़े है, तो हम उनको सॉल्व कर देंगे. सॉल्व करेंगे तो ही सोसाइटी में इक्वालिटी आएगा और सभी को जस्टिस मिलेगा. फर्स्ट स्टेप was taken was policy of reservation of seats. So we have reserved some seats for people from lower caste so that they can get equal opportunity. अगर कोई गवर्नमेंट का जॉब है और उस जॉब के लिए हायर कास्ट के लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, लोअर कास्ट के लोग भी अप्लाई कर रहे हैं. हायर कास्ट के लोग ज्यादा एजुकेटेड है या उनके एजुकेशन फैसिलिटी जल्दी मिल रहा है उनको, सो देर आर चांसेस दैट दे कैन गेट दैट जॉब इजीली. बट लोअर कास्ट पीपल हु आर नॉट अलाउड टू गो टू जॉब स्कूल्स अर्लियर, so because of this they are backward. So we are giving reservation for lower caste people so that they can get equal opportunity to get that job. So that is given in reservation. Policy of reservation of seats is meant for those sections of society who have been deprived of opportunities. मतलब उनको opportunities नहीं मिल रहा था, उनको हमने, जिन लोगों को opportunities नहीं मिल रहा था उन लोगों को हमने reservation दिया. So this is from people who are from backward class for education and employment for long period of time. Accordingly, in educational institutions or colleges, schools that are education institutions, and in government services means government jobs, some seats are kept reserved for scheduled caste and scheduled tribe. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको सीट्स रिजर्व करके रखा है. उन सीट्स पे सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं, उनके बीच में ही कंपटीशन होगा. सो बिकॉज ऑफ दिस दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब्स, दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन. देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लास और ओबीसी, उनको भी कुछ सीट्स रिजर्व्ड है. नेक्स्ट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट. एट्रोसिटी मतलब अत्याचार. जब भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या फिर जो सोसाइटी में जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, उनके ऊपर जब भी अत्याचार होता है, किसी हायर कास्ट के लोगों ने या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने उनके ऊपर कुछ गलत काम किया या अत्याचार किया, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव टू प्रोटेक्ट देम वी हैव मेड अ लॉ, दैट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट. This is an important act for establishing social justice and equality. So because of this, social justice and equality is there in the society. Act prevents any injustice against the people belonging to scheduled caste and scheduled tribes, and any act for atrocity committed against them is liable to punishment. अगर कोई लोअर कास्ट के लोगों के ऊपर या SC ST के लोगों के ऊपर हमने अत्याचार किया, उनके कास्ट के ऊपर कुछ बोल दिया या उनको हम तकलीफ दे रहे, so we will be punished. To protect them, to protect people from social scheduled caste and scheduled tribes, we have made a provision in the constitution. We have made a law, scheduled caste and scheduled tribes prevention of atrocity act. So इस एक्ट के वजह से जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है सोसाइटी में, उनके अगेंस्ट कोई काम नहीं कर सकता है. So this is protecting them. Then we have seen last year also we have studied about provisions for minorities. Minorities मतलब जिनका population 50% से कम है. So in case of religion, Hindus are majorities. Hindus का population ज़्यादा है. Muslims, Christians, these are minorities. So we will see what are the provisions that are made for minorities. Provisions means what are the different steps or what are the different laws that are made for minorities, for the protection of minorities. The Indian Constitution has made several provisions for the protection of minorities. The government has adopted several policies for minorities to provide them opportunities for education एंड एम्प्लॉयमेंट. सो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, उनको जॉब्स प्रोवाइड करता है, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. माइनॉरिटी के लोग अपने स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट उनको उनके लैंग्वेजेस में सिखाता है. सो बिकॉज ऑफ दिस दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, रीजन. सो वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी. डिस्क्रिमिनेशन करना मतलब किसी को बाहर साइडलाइन कर देना. So we cannot discriminate anybody on the basis of religion, caste, sex or place of birth, region, etc. This is a comprehensive provision for minorities which fundamentally protects their rights to education, freedom, right against exploitation and cultural and educational rights. So because of this they are getting protection. ये protection मिल रहा है उनको कि majority community जो ज़्यादा नंबर में लोग हैं वो minority के rights छीन नहीं सकते. That is protected by the constitution. Constitution उनको guarantee देता है. सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ये सब राइट्स मिला है उनको. देन लॉज रिलेटेड टू वुमेन एंड प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन.
सो वुमेन के लिए लॉ बनाया. लास्ट ईयर वी हैव स्टडीड अबाउट एंटी लिकर मूवमेंट और देयर वाज एंटी डाउरी लॉ. सो देयर वर सम लॉज दैट वर मेड फॉर वुमेन. So to protect from domestic violence, there were some laws. So these laws are made for protection of women. In politics, you must be seeing there are many men who are ministers, who are prime minister, chief minister. There are very few female who are becoming leaders. So उनको leaders बनने के लिए हमें उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा. रिजर्वेशन देंगे तो ही वो रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे. रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ेगा? जब भी रिजर्वेशन मिलेगा. In first part we have seen during decentralization 33% seats were reserved for women in panchayats. So because of this 33% reservation, women को चांस मिल रहा है अभी सरपंच बनने का या कोऑपरेटर बनने का या नगर सेवक बनने का चांस मिल रहा है. In the post independence period, post independence means after independence, efforts were made for empowering women. Taking into consideration the problems of women, several policies have been adopted at national and international level to remove illiteracy among women and to make equal opportunity for their development, available opportunity for their development. तो जब भी illiteracy end होगा, women जब भी literate होगी, जब भी educated होगी, then only they can get jobs and they can start their own business also. So women should be given women should be given education. If they are getting education, then they will get jobs or they can start their own business also. So at international level, at national level, these efforts have been made that women should get education facilities. The right to have their equal share in the property of father and husband. Women, suppose a father is having a property and he is having two children, male and female, or girl or boy. So whenever there is a division in the property or there is distribution in the property, equal share should be given to female. ये law बना है. Then Dowry Prohibition Act. Last year we have studied about dowry. Dowry means दहेज लेते हैं, उसको protect. दहेज की वजह से बहुत सारे लड़कियों के ऊपर अत्याचार होता है. There is a domestic violence in the home. So we have made a law against dowry. जो डाउरी है, जो दहेज है, उसे इलीगल बनाया हमने. ये प्रोटेक्ट करने के लिए, वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया. Then domestic violence. Domestic violence means there is men are beating women. So to stop this, we have made a law, Domestic Violence Act. Then sexual harassment. So people are kidnapping women. So this is wrong. So to stop that, we have made a law. We have made some laws. So suppose somebody is doing bad things with women, then that person will be punished. That person will be jailed. Then there are some important provisions which create a favorable environment for protection of freedom of women and securing their development. So because of this, women's development is securing. They are getting security that they will also get developed and they will also get freedom. In our country, from very beginning, women have inadequate representation in politics. Inadequate representation मतलब कि women के number कम है, politics में number कम है, women कम representatives है. So many countries in the world have made effort to increase representation of women. From this perspective, changes have taken place in India as well. 73rd and 74th amendment reserved 33% of seats for women. So 73rd और 74th amendment हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, जब भी चेंज हुआ 73rd और 74th बार, उस टाइम जब भी चेंज हुआ तभी हमने 33% जो सीट्स है, जो लोकल बॉडीज में, पंचायत म्यूनसिपालिटीज में जो सीट्स है, that seats will be reserved for women. 33% seats will be reserved for women. In case of Maharashtra, 50% seats will be reserved in women. So if you see this table, in 1952, this is about Lok Sabha. Lok Sabha में ऐसा रिजर्वेशन नहीं है, 33% रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ लोकल लेवल पे या फिर पंचायत म्यूनसिपालिटीज में ही रिजर्वेशन है. So if you take example, if you take the figures of Lok Sabha, in 1951-52 जब ये फर्स्ट लोक सभा बना था, there were only 22 female representatives. सिर्फ 22 women MPs थी, member of parliament थी. परसेंटेज था 4.50%. आज 2014 में भी सिर्फ 66 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है, सिर्फ 66 वुमेन MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका परसेंटेज है 12.15%. सो वेरी फ्यू वुमेन आर गेटिंग चांस टू बिकम लीडर्स, बाकी सब मेल लीडर्स है. सो दिस इज रॉन्ग. सो वुमेन शुड ऑल्सो गेट इक्वल शेयर. one good thing is that in panchayat we have given women representation. So पंचायत और म्यूनसिपालिटी के मिलके 10 लाख से ज्यादा फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स है इंडिया में. So that is good thing. But in Lok Sabha or in Vidhan Sabha, women are not getting equal power. See,
In this chart it is given in which election year the number of women MP is minimum. So in the number is minimum in the first election, in the 1977 election, where only 19 representatives were there. In which election the number of women is maximum? So maximum कब था? Maximum is in 66. So we can see many women. Now this is in Lok Sabha election. ये लोक सभा election का बात हो रहा है. So in Lok Sabha election there is no representation or there is no reservation for women. So till now we have studied about democracy, we have studied about decentralization of power or right to vote, right to information. In the second part we have seen about social justice and equality. We have seen how reservation is given to women, how reservation is given to backward communities. There is some provisions for minorities. In the third part we will see what is the importance of judiciary or what is the role of judiciary. जुडिशरी का मीनिंग होता है कोर्ट. हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ जुडिशरी. दिस बिकम्स अ जुडिशरी. सो वी विल सी व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, व्हाई जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट इन द डेमोक्रेसी. सी जुडिशरी in India has played an important role in strengthening democracy or to make democracy strong. We will see how judiciary has made democracy strong and helping in make towards achieving the objectives of social justice and equality. So because of judiciary we are getting equal treatments. अगर गवर्नमेंट हमारे बीच में डिफरेंशिएट कर रहा है, अगर गवर्नमेंट सिर्फ हिंदूज के लिए काम कर रहा है या सिर्फ मुस्लिम्स के लिए काम कर रहा है, दैट इज रॉन्ग. गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीबडी. सो एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज टोल्ड अस दैट वी आर इक्वल, सो गवर्नमेंट शुड ऑल्सो ट्रीट अस इक्वल. गवर्नमेंट को हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, इक्वल ट्रीटमेंट. अगर हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो हम जुडिशरी के पास जा सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट. सो ये जुडिशरी हमें गारंटी देगा. जुडिशरी गवर्नमेंट को डायरेक्शन देगा, गवर्नमेंट को ऑर्डर देगा कि आप ठीक से काम करो. सो जुडिशरी इज गिविंग अस गारंटी. जुडिशरी है तो हमें गारंटी मिलता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा काम करेगा, या फिर हमें जो लॉज, हमें जो राइट्स मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स मिला है, वो राइट्स हमें एंजॉय करने का चांस मिलेगा. सो जुडिशरी इज गिविंग अस दैट गारंटी. While interpreting the provisions of constitution, judiciary has always taken into consideration the fundamental objectives of our constitution. See, कुछ हमारे फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स है कॉन्स्टिट्यूशन के. जैसे हम सेक्युलर कंट्री है, सभी रिलीजन को एक जैसा मानते हैं. हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, वी आर रिपब्लिक कंट्री, और वी आर गिविंग इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरीबडी. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस है, ये सभी को फॉलो करना पड़ता है, सभी गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है. सी व्हेनेवर गवर्नमेंट इज मेकिंग एनी पॉलिसी, गवर्नमेंट ने अगर कल पॉलिसी बना दिया कि स्कूल में सिर्फ बॉयज ही जाएंगे, गर्ल्स को स्कूल में अलाउड नहीं है, so that policy is wrong. That policy is against the constitution. That policy is against right to equality. जो हमें right to equality मिला है, that is against that. So court will check, court will interpret. Interpret means check whether the government policy is correct or wrong. If the government's policy is not according to the constitution, then courts can cancel that. Court means Supreme Court can cancel that policy. So it is important that courts are there and they are checking on the work of government. They can only check on laws, whether the laws are correct or whether the laws are wrong. गवर्नमेंट के काम के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट ने लॉज बनाया वो चेक कर सकता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कि ये लॉज बराबर है कि गलत है. इफ द लॉज आर रॉन्ग देन दे कैन डायरेक्टली कैंसिल दैट लॉज. सो दैट इज इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना मतलब चेक करना. So because we will try to understand the contribution of judiciary in this regard. So we'll see what is the importance of judiciary. See, there is a basic framework of our constitution. See, let us understand what is the basic framework. What does the basic framework means? See, in the second part we have seen, or in the first part also we have seen, there we have studied about 73rd and 74th amendment of the constitution. जब भी decentralization हुआ power या women को representation मिला. Amendment means changes made to the constitution. सी कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम चेंज नहीं कर सकते, या फिर कुछ ऐसे पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. दैट बिकम्स द बेसिक थिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये पार्ट हम चेंज नहीं कर सकते. कुछ छोटे चीज हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोल है, जो आत्मा है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते. सो लेट अस सी व्हाट आर द थिंग्स दैट आर बेसिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ये बेसिक चीज हम चेंज नहीं कर सकते. ये बेसिक चीज अगर चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट चेंज करने का कोशिश कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन होता है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का देखभाल करता है, चेक करता है कि गवर्नमेंट ठीक से चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है.
अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जो बेसिक थिंग है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये अगर गवर्नमेंट चेंज करने का कोशिश कर रहा है, ये अगर लेजिस्लेचर या लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा चेंज करने का कोशिश कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस गवर्नमेंट को ऑर्डर देगा कि ये आप चेंज मत करो, डायरेक्शन देगा। अगर कोई भी पॉलिसी बना दिया गवर्नमेंट ने, वो पॉलिसी कैंसिल भी कर सकता है। सो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स और जुडिशरी is checking on the work of government. They are checking whether the government is making correct laws or not, or they are interpreting the constitution. The constitution is dynamic. Dynamic means we can change the constitution. It is living document. It is living document. See, constitution जो 50 years पहले जो बना था, या फिर जो 70 years पहले, 65-70 years पहले जो constitution बनाया था हमने 1950 में, सेम constitution आज हम यूज नहीं कर रहे। बहुत सारे चेंजेस हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, मोर देन 100 चेंजेस हुए कॉन्स्टिट्यूशन में। सो जैसे हमारा सोसाइटी एडवांस होते जाता है, वैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करते जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस करते हैं। सो इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशंस एंड द पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक दोज चेंजेस। सो इन इंडिया ओनली पार्लियामेंट कैन मेक चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी सिर्फ चेक कर सकता है कि वो चेंज गलत है कि सही है। अगर गलत चेंज किया है तो उसको कैंसिल कर सकता है। बट इन इंडिया ओनली पार्लियामेंट इज हैविंग द पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। ओनली पार्लियामेंट मीन्स लेजिस्लेचर। द जुडिशरी हैज एक्सेप्टेड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट एट द सेम टाइम स्पेसिफाइड लिमिटेशंस ऑन द पावर। कुछ लिमिटेशंस रखा है पार्लियामेंट के काम के ऊपर कि आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। देर आर सम थिंग्स दैट कैन नॉट बी चेंज, दैट यू हैव टू रेस्पेक्ट। दैट इज चेक्ड बाय जुडिशरी। The judiciary has taken stand that parliament has, while amending the constitution, cannot alter the basic structure of the constitution. तो जुडिशरी ने बताया, एक केस हुआ था अपने इंडिया में 1976 में। उस केस के बाद केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वो केस के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, उस स्ट्रक्चर को कोई चेंज नहीं कर सकता है। जुडिशरी वो चेक करेगा कि ये स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है। अगर लेजिस्लेचर कुछ लॉज बना रहा है, पार्लियामेंट कुछ लॉज बना रहा है, तो बना सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता है। वी विल सी व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। द फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर इज रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सी वी हैव सीन वी आर हैविंग रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स, इन द फर्स्ट पार्ट आई हैव टोल्ड यू, रिपब्लिक मीन्स हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल, और हेड ऑफ द स्टेट मीन्स कंट्री, ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल। सो हम ऐसा कल नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ कल से राजा रूल करेंगे, दैट इज रॉन्ग। हमने क्या बोला है कि हमारे जो हेड है कंट्री के, दैट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। ये हमारा बेसिक थिंग है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो वी कैन नॉट चेंज दैट। एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वी कैन नॉट से दैट फ्रॉम टुमारो इंडिया विल बी अंडर डिक्टेटर। दैट कैनॉट हैपन इन इंडिया, बिकॉज we are having democracy, and democracy is the basic thing of our constitution, or basic structure of our constitution. Then फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल मतलब क्या होता है कि 2 और 3 लेवल में पावर डिवाइड होता है। जैसे हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट है या नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, उसके बाद लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है। ये फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हम चेंज नहीं कर सकते। कल जाके सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोल सकता कि इंडिया के सभी स्टेट गवर्नमेंट को हमने कैंसिल कर दिया, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होगा। दैट इज रॉन्ग, दैट कैन नॉट बी डन, दैट कैन नॉट बी चेंज। तो ऐसे लॉज हम नहीं बना सकते। That is against the constitution, that is against the basic structure of the constitution or basic framework of the constitution. Third is promoting the unity and integrity of the nation. Country में unity होना चाहिए, country में integrity होना चाहिए, everybody should be treated equally, there should be dignity given to the citizen, there should be some respect given to the citizens. ये सभी को मिलना चाहिए। कल जाके हम बोल नहीं सकते कि country को break कर दो, country को divide कर दो, that is wrong, that is against the basic structure of the constitution. Then sovereignty of the nation. Sovereignty means कंट्री के जो लोग हैं ये अपने लिए डिसीजंस ले सकते हैं, बाकी बाहर का कोई फॉरेन कंट्री उनके लिए डिसीजन नहीं लेगा। जैसे इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के लीडर्स को चूज कर सकते हैं और वो लीडर्स हमारे लिए काम करते हैं। कोई बाहर का कंट्री हमारे काम के अंदर इंटरफियर नहीं कर सकता। दैट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मीन्स सिटीजन्स आर हैविंग द पावर टू चूज देयर टू टेक डिसीजंस फॉर देम, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी एक्सटर्नल फैक्टर। सो सोवरेनिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फ्रेमवर्क है। सो कोई भी बाहर का कंट्री हमारे काम के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सेकुलरिज्म एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलरिज्म मीन्स ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल इन अवर कंट्री। गवर्नमेंट शुड ट्रीट ऑल द रिलीजन्स एज इक्वली। अगर गवर्नमेंट कोई एक रिलीजन को प्रेफरेंस दे रहा है, सो दैट इज रॉन्ग, दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अगेंस्ट द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं हो सकता है।
ऐसे अगर गवर्नमेंट करने का कोशिश कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको रोक देगा, ये सॉरी जुडिशरी उसे रोक देगा। एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी मीन्स इंडिया में सबसे बड़ा सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सभी को मानना पड़ेगा, जो भी प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या कॉमन सिटीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन सभी को इक्वल है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम पावर इन द कंट्री। थर्ड है सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजंस, जो इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजन हुए हमारे कंट्री में, उसके बारे में देखते हैं। The protection provided to the citizens by fundamental rights is in the constitution has been made more meaningful through various decisions of judiciary. See, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको कुछ प्रोटेक्शन दिया, हमको कुछ राइट्स दिया। ये राइट्स गवर्नमेंट हमसे छीन नहीं सकता है, ये राइट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सिटीजन्स करके हमें राइट्स देते मिलते हैं। दिस इज द प्रोटेक्शन गिवन टू द सिटीजन। ये राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे केस हैंडल किए थे, या सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजंस दिए थे। वी विल सी फॉर व्हाट रीजन द डिसीजंस वर टेकन। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑन विच कोर्ट हैज गिवन जजमेंट includes right to children. Children are having equal rights. Children are having right to education, or they cannot be sent to as child laborers. So that is wrong. Then protection of human rights. Human rights should be protected. Then protection of honor and dignity of the women. So women को equal status मिलना चाहिए, women की जो इज्जत है वो उनको equal level पे मिलना चाहिए, मेल जैसा equal treatment मिलना चाहिए. That is honor and dignity of the citizen. Then individual freedom. All people in India are having freedom. They can speak against the government, or they can move freely in any part of the country. That is individual freedom. And tribal empowerment. Tribal population को हमने empower करना चाहिए. इस सब के लिए हमारे कोर्ट ने बहुत सारे judgments दिए थे to protect this. The efforts have been made the political process in India for मोर मैच्योर। तो हमने एफर्ट्स लिए कि हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस है उसे ज़्यादा मैच्योर बनाना चाहिए, ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेशन करना चाहिए। सो वी आर टेकिंग सम स्टेप्स टू मेक आवर पॉलिटिकल सिस्टम मोर एंड मोर मैच्योर। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लेट अस सी व्हाट इज गिवन। सी गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिबल। अकाउंटेबल मतलब गवर्नमेंट एक आंसरेबल होना चाहिए लोगों को। गवर्नमेंट को हम जवाबदार पकड़ सकते हैं, गवर्नमेंट को आप जवाबदार रख सकते हैं कि गवर्नमेंट का ये काम था, गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। अगर गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है तो हम गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, दूसरा गवर्नमेंट वोट कर सकते हैं। सो दैट इज अकाउंटेबिलिटी। एंड रेस्पॉन्सिबल मीन्स गवर्नमेंट काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी देयर टू गवर्नमेंट। देन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट। इफेक्टिव मतलब गवर्नमेंट एक इफेक्टिव काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, और एफिशिएंट है, कामचोर नहीं है गवर्नमेंट, अच्छा काम कर रहा है। दैट इज एफिशिएंट गवर्नमेंट। देन रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। रेस्पॉन्सिव मीन्स पीपल आर आस्किंग सम क्वेश्चन, देन गवर्नमेंट शुड रेस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन, like we have seen in right to information. Whenever people are asking a question, the government has to answer to that question. So government should be responsive. Transparency in working of government. Government work should be transparent. Transparent means कोई भी घोटाला नहीं होना चाहिए या कोई भी करप्शन नहीं होना चाहिए. And government should give all the information to the citizen. Everything should be published. Secret नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के पॉलिसीज, ये लोगों को पता लगना चाहिए. So there will be transparency in the work of the government. Then just and all inclusive development. So government should do development, but that should include everybody. सभी को equal power मिलना चाहिए development का. People's participation in the government and decision making process. So people should have participation in the government. गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रहा है वो लोगों को पूछ के लेना चाहिए, और लोगों ने भी पार्टिसिपेशन करना चाहिए. लोगों ने फोर्स करना चाहिए गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने ऐसे डिसीजंस लेना चाहिए जो लोगों को बेनिफिट हो. सो दैट शुड बी देयर इन द सोसाइटी. So in this chapter we took a review of constitution and the working of government on the basis of constitution in the context of Indian democracy. We have seen what is the constitution and what are the various things that are written in the constitution, work according to that things. So government it is compulsory that government is working according to the constitution. There are many challenges before India's democracy. Government act and policies have not put an end to all problems. There are several new problems confronting us. As we are overcoming one problem, there are new problems that are coming. So as we are tackling more and more problem, as we are advancing, हमारा जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, हमारा डेमोक्रेसी जैसे मैच्योर होते जाएगा, वैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं.
However, there are several problems, new problems confronting us. However, what is important is that people of India have adopted a democratic mindset. See, people of India have adopted democratic mindset. If you are asking anybody, majority of the people will tell, if you are asking some people, majority of the people will tell democracy is the best option. बहुत कम लोग होंगे जो डिक्टेटरशिप के साथ जाते होंगे. Many people or majority of the people will say that democracy is the best option. Democracy is the best form of government. So in the next chapter, we will study about election process in India. We will see how elections are carried out in India, what is the role of Election Commission of India,